हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। इसमें आज हम करेंगे द गुप्तास एंड देयर इज अ सक्सेसर इज एडी 300 टू द 750। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम इसमें गुप्त वंश था उनके उत्तराधिकारी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो रहेगा कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे यूपी बिहार के बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये हर जगह के लिए विस्तृत रहेगा क्योंकि इसमें हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हम समझेंगे। साथ में आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है शब्दों का डिस्प्ले होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो सदैव आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic discussion here are religions. Religions is according to the Guptas and their successor. There is the most important here or religion. The Gupta ruler give a predominance of the Bhagavatisms but they are tolerant to the other religions too. The Chinese pilgrims is a Farhan and the is a Haveshang is the most important here is who is come to the India and doing to the religions of the Chandragupta too and the Harsha. And usually there is a clear give to the impressions that Buddhism was also flourished. The Harsha thought the Sivas in their real life is become a follower of Buddhism and great patrons of the religion. And he is convinced on the assembly of the Kannauj to the public lies to the Mahaisms and the Nalanda development as a great center of education from is a Mahayan. Buddhism during his time, students from outside the country also come to the study in the university. According to here, Havesang, there is a most important revenue of the 100 is a villages supported it. The Bhagavatism is centralized on the worship of the Vishnu and is the incarnations. It is a put emphasis on the bhakti, love to the devotions, and the ahimsa is a non-killing of animal. Ahimsa is the most important here. It is a no killing of animal rather than to the Vedic ritual and the sacrifice. The new religious was a quite liberal and the associated the lower classes in the fold. According to the Bhagavad Gita, the chief text of the Bhagavatisms, and whenever there is the social Christ of Vishnu would be appear in the human from on the save the people. Thus the 10 incarnations of Vishnu were perceived is a Purans as were written to be popularized their victories of the each one of the incarnations. The idols of the god where is a household in the temple is constructed in the Gupta period. That is the most important here. In the South India from to the 7th century onward, the Tamil is the sun is called Alavaras and the Nards. The popularized the concept of bhakti. There is the most important here. Alayars and the Nards is published by the concept of bhakti. Alayars as a sant is popularized. There is a worship of the Vishnu, and Nayar is a sant is a worship of the Shiva. That is the most important for the religion on the Gupta Empire time. We also notice the spread of the Tantrism in the India in the period. From the 5th century, the Brahmins had started to receive land is the tribals as area of the Nepal, Assam, Bengals, Orissa, Central India and Deccan. As the consequence, there is tribals is element come to the be assimilated in their
Brahminicals of society, there are Brahmins is adopted their ritual as a god and goddesses. There is the most important here. It is the symbolization of the Brahmanicals of religion and travels of practice, which is resulting in their development of Tantrism. It is they did not believe in any caste or gender divides and admitted to both women and Shudras in the ranks. It put the emphasis to the female as a source of power and energy. The Tantric is a concept affected to the Islam and the Vishnuism as well as the Buddhism and Jainism. It is resulting in the introduction of the worship of female devotees in these religions. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है धर्म, देखिए धर्म जो है गुप्त वंश था उसके उत्तराधिकारी के अंतर्गत आया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं उस समय हमें धर्म किस प्रकार की थी, लोग किस चीज़ को मानते थे, क्या उनकी विशेषता थी, ये जानने को हमें मिलेगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा। कहते हैं गुप्त शासकों ने जो है भगवत पंथ को प्रत्यय दिया, किंतु वे अन्य धर्म के प्रति भी सहिष्णु थे। गुप्त काल का जो हर्षवर्धन के समय भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री जो क्रमशः आए थे, फरहान और जो हर्वे संघ के यात्रा वृत्तांत से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म भी प्रगति कर रहा था उस समय। हर्ष ने शैव मत को मानने के बावजूद बौद्ध धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि हर्ष ने शैव मत को मानता था, लेकिन शिव को मानता था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को भी अपना लिया और बौद्ध धर्म को भी मानने लगा। वो इस धर्म का महान संरक्षक भी बन गया था। उसने महायान को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए कन्नौज में एक सभा का भी आयोजन किया था, ये शायद आपको पता भी हो। उसके शासनकाल में नालंदा बौद्ध धर्म के जो है महायान शाखा का प्रमुख शिक्षा केंद्र बनकर उभरा था और बाहर के देशों के जो है विद्यार्थी भी इस विश्वविद्यालय में ज्ञान अर्जन को आते थे और हर्वे संघ के अनुसार 100 गाँव के राज्य में ये संचलित भी होता था। तो देखा जाए तो धर्म उस समय काफ़ी अपनी चरम सीमा पर था। कहते हैं भगवत पथ जो है भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा अर्चना पर आधारित थी। यानी भगवत पंथ जो था विष्णु के अवतारों पर जो है पूजा अर्चना पर आधारित थी और इसमें जो है वैदिक कर्मकांडों तथा बलि के स्थान पर भक्ति एवं अहिंसा पर बल दिया गया था। यानी अहिंसा पर बल देना बड़ी जरूरी थी। न्याय पंथ उदारवादी था जिसमें निम्न जाति के लोग भी इसका अनुसरण कर सकते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि कोई भी जाति का जो है व्यक्ति इसका अनुसरण कर सकते थे। भगवत गीता के अनुसार जब भी अधर्म होता है भगवान जो है विष्णु जो है मानव रूप में जन्म लेते हैं तथा जगत की रक्षा करते हैं। ये भगवत गीता में साफ शब्दों में कही गई है। इस प्रकार विष्णु के 10 अवतारों माना गया है। 10 अवतार के बारे में चर्चा भी थी। हर अवतार के गुणों को लोकप्रिय बनाने के लिए पुराणों की रचना की गई थी। गुप्तकालीन मंदिरों में भगवान की प्रतिमा स्थापित भी होती थी। तो ये इस समय का सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक विशेषताओं में से एक माना जा सकता है, जहाँ पर विष्णु को जो है 10 अवतारों की जो है यहाँ पर चर्चा की गई है। दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी के पश्चात अलंबर तथा नयनार तमिल संतों ने भक्ति के सिद्धांतों को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया था। कहते अलंबर संतों ने भगवान विष्णु के रूप में तथा नयनार संतों ने जो है भगवान शिव के रूप में जन में जो लोकप्रिय बनाया। यानी देखा जाए तो इस समय 2 ही जो है ईश्वर के रूप में थे, वो विष्णु थे और शिव थे। और कहते हैं ये जन में लोकप्रिय बनाया गया और तंत्रवाद का उदय भी हम इस युग में देखते हैं। कहते हैं 5वीं शताब्दी के पश्चात ब्राह्मणों को नेपाल, असम, बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य भारत एवं दक्कन के प्रदेशों में जो है जनजाति क्षेत्र में भूखंड मिलने आरंभ हो गए थे। कहते परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के समाज में ये जनजाति तथा सम्मिलित हो गए थे और ब्राह्मणों ने उनके देवी देवताओं कर्मकांडों को अपना लिया। जो कर्मकांड उस समय थी जो ब्राह्मणों ने बताया था वो सभी देवी देवताओं और कर्मकांडों को जो है आम जनता ने अपना लिया था। और ये ब्राह्मणवादी संस्कृति जनजातीय परंपराओं से काफ़ी मिश्रित थी, जिसने जो है तंत्रवाद को भी जन्म दिया। यानी तंत्रवाद भी उस समय अपनी चरम सीमा पे थी। इसमें लिंग अथवा जाति आधारित भेदभाव नहीं था। यानी यहाँ पर देखा जाए तो लड़कों में जो है जाति में कोई भेदभाव नहीं की जाती थी, जो कि बहुत ज़रूरी था। महिलाएं एवं शूद्रों के स्थान प्राप्त था। महिलाएं एवं शूद्रों को अपना स्थान प्राप्त था और उन्हें
स्त्री को शक्ति तथा ऊर्जा का भी केंद्र बताया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि स्त्री को महान रूपों में यहाँ पर दर्जा दिया गया था। और तंत्र के सिद्धांत ने शैव, वैष्णव और बौद्ध, जैन सभी धर्मों पर प्रभाव डाला था। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि इन क्षेत्रों में देवी और देवताओं की पूजा आरंभ हो गई, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी ज़रूरी था। देखिए इस समय में जो था काफ़ी ग्रंथों की रचना की गई। कहते हैं कि ग्रंथों और धर्म के उत्कृष्ट के लिए ये जो गुप्त समय था बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस समय बहुत रामायण और महाभारत की रचना के साथ बहुत सी चीज़ों का जो है उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को और सुनने को मिला। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट समय काल था धर्म के लिए भी और साहित्य के लिए भी। साहित्य में बहुत सी रचनाएं की गई, लोगों को सही मार्गदर्शन करने के लिए देवी देवताएं, कर्मकांड, जादू टोना, हर चीज़ के बारे में जो है यहाँ पर जो है विस्तृत जानकारी थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब चलिए देखते हैं आज कि टेक्नोलॉजी और जो है साइंस का यहाँ पर क्या तालमेल बैठाया गया था गुप्ता के पीरियड में। The next here is the science and technology. There is a most important here discussion here. The Guptas and their successor. There is a most important science and technology. On the idea of the progress of science and technology in the Gupta period can be had from the important text written on this subject during the period. The most is a notable among them as the astronomical as a text called is a Aryabhattam, written by the Aryabhatta in the 5th century. Aryabhattams, they written by the Aryabhat of the 5th century. Aryabhat was the astronomers and mathematicians, and he formed to first time suggests that the earth is a rotate on its axis and the revolves around to the sun and the causing tempests. There is the most important theory given here, and he was the first to invent the zero and the use of the decimal system. The another scholar is a Brahma Mihira. There is a most important here, Brahma Mihir. Brahma Mihir at the end of the 6th century was a great astronomer who has written to number of books on the astronomy, and his work of Panch Siddhant. Panch Siddhantaka is most important here and the deal with the 5 astronomical system. The Brahma Gupta as well as known to this the mathematician also live in the Gupta period. There is a most important here. Here the methodologies also show the technical advancement in the Gupta time. There is a browsing image of the Buddha produced on the considerable scale in the period are an example of the advanced technology. The 23 feet height iron pillar at the Merholi in the Delhi to be speak the volume of the iron technology and prevalent there is a Gupta period. Standing in the open, these pillars as not to be gathered rusted even after the 50th century. There is a most important here, and the wonderful painting of the Ajanta is still intact of the indicate is at the other thing. The arts of the making color during this period there is a most important. The important is a Mehroli in the Delhi. There is speak on all the history of pillar. There is a 50th century. There is a very long time. There is not crust and gathering here, and the 50th century after. There is a most important. Important also is Ajanta still the intact indicate beside other things art and making of color during this period. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट आया है विज्ञान तथा तकनीक। देखिए विज्ञान और तकनीक का युग सिर्फ हमारा नहीं है, विज्ञान और तकनीक का कहते हैं 5वीं शताब्दी में भी थी। तो कहते हैं बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उस समय बहुत चीज़ें ऐसी थी जो साइंस को जो है मात दे रही थी और बहुत चीज़ों की खोज भी हुई। कहते हैं उस समय गुप्ता का ही समय काल था, यानी गुप्त वंश के ही राजा इस समय जो है राज्य किया करते थे और उस समय साइंस कमज़ोर नहीं थी, साइंस भी काफ़ी जो है तरक्की कर रही थी। गुप्त काल में विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के बारे में जानकारी हमें इस काल में इस विषय से रचित ग्रंथों से भी हमें मिलती है। इन ग्रंथों में सर्वाधिक चर्चित ग्रंथ जो था खगोलीय विज्ञान पर आधारित आर्यभट्टम। देखिए आर्यभट्ट में खगोलीय विज्ञान के विषय में विस्तार पूर्वक बताया था, जो कि आर्यभट्ट द्वारा 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। यानी 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टम ने साहब ने बात को साफ कर दिया था खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत। आर्यभट्ट एक जो है खगोलीय विज्ञान तथा गणितज्ञ थे
उन्होंने ही प्रथम बार यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण होता है। उन्होंने शून्य की खोज भी की थी तथा दशमलव प्रणाली का प्रयोग जो है प्रथम बार उसी समय किया गया था। एक अन्य विज्ञान जो है ब्रह्ममिहिर, जो 6वीं शताब्दी के उत्तर भारत महान खगोलीय शास्त्री थे, उन्होंने जो है खगोलीय विज्ञान पे कई पुस्तकें की रचना कर दी थी। उनकी रचना जो थे पंच सिद्धांत में जो है 5 प्रकार की खगोलीय पद्धति बताई गई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे गुप्त काल के अंतर्गत ही रचित हुई थी। तो गुप्त काल के लिए जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी थी, चरम सीमा पर कह सकते हो कि थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सुविख्यात गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त भी जो है गुप्ता कालीन के ही थे। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इतने महान महान विशेषज्ञ जो थे गुप्ता के काल के समय में विद्यमान थे। गुप्त वंश में धातु विज्ञान में भी नई तकनीकी का आगमन हो गया था, यानी धातु के बारे में भी गुप्त वंश को सब कुछ नॉलेज था और इसका कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। इस युग में निर्मित महात्मा बुद्ध की तांबे की विशालकाय मूर्ति उन्नत तकनीक का एक सबसे बड़ा उदाहरण था, क्योंकि इतना बड़ा जो है बुद्ध का प्रतिमा बनाना बिना टेक्नोलॉजी का संभव ही नहीं था। मेहरौली स्थित लोह स्तंभ भी धातु के क्षेत्र में गुप्त वंश की विकसित तकनीक का सबसे बड़ा व्याख्या करती है। यानी जो है मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि उनको जो है मिश्र धातु की पुण्य ज्ञान थी। कहते हैं लोह स्तंभ धातु के क्षेत्र में गुप्त वंश की विकसित तकनीक का सबसे बड़ी है और खुले क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद भी 15 शताब्दी उपरांत भी इस स्तंभ में जंग नहीं लगी है। तो आप समझ सकते हो कि गुप्त टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितना जो है तरक्की कर रखा होगा। अजंता की गुफाओं में उकेरे गए पक्के रंग के चित्र रंगों के क्षेत्र में रंग बनाने की कला की व्याख्या भी करते हैं। अब देखिए उस समय के किया हुआ रंग आज तक विद्यमान है, तो आप समझ सकते हो कि उनकी जो है कितने टेक्नोलॉजी जो थी उस समय विकसित थी। हमारे टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि एक काम होता है दूसरे काम खराब हो जाता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है जिसका आप व्याख्या करना यहाँ संभव नहीं है। और व्याख्या करना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि इनकी साइंस टेक्नोलॉजी बहुत काफ़ी उत्कृष्ट थी। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप इसी तरह बने रहिए और तिरपान स्टडी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।